لاہور سے ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران کے احکامات پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کی ڈی ایس پی عاطف معراج اور ایس ایچ او ملت پارک آصف فرید کے ہمراہ جامعہ مسجد انجمن حمایت اسلام میں کھلی کچہری۔ کچہری میں ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد نے عوام الناس کی شکایات مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں پولیس کی جانب سے بھرپور تعاون اور درپیش مسائل کو اولین ترجیحات پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلے کم کر کے محبت پیدا کرنا ہے۔ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی عزت احترام سے پیش آئیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا مزید کہنا تھا کہ عوام الناس مشکل کی ہر گھڑی میں پولیس کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ پہلی صفوں میں پائیں گے۔ شہریوں کے مسائل کے لیے ہمارے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال زون سے 2 جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ گرفتار۔ دونوں نوسرباز اپنے آپ کو اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون کا نمائندہ بتاتے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کے دونوں نوسربازوں کے خلاف مقدمہ کائنات۔ علامہ اقبال زون سے 2 جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ گرفتار۔ دونوں نوسرباز اپنے آپ کو اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون کا نمائندہ بتاتے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کے دونوں نوسربازوں کے خلاف مقدمے کا اندراج کروا کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کو بدنام کرنے کی کوشش مسلسل ناکام، مزید 2 اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ گرفتار۔ تحصیل علامہ اقبال زون میں دکانداروں سے بتا وصول کرتے ہوئے 2 جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ گرفتار۔ دونوں نوسرباز معتبر دکانداروں سے بتا وصول کر رہے تھے۔ جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ خود کو اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون کے نمائندگان بتاتے تھے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ دکانداروں سے دھوکہ دہی فرار سے پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون نے نوسربازوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ نوسربازوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا۔ محمد شفیق اور اعجاز نامی نوسرباز کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ شہری کسی بھی مقام پر نوسربازی دیکھیں تو فوراً اطلاع کریں۔ نشاندہی کی صورت میں ہمارے فیس بک پیج، ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دیں۔ نوسربازوں سے ہوشیار رہیں۔ شہری شہر کو لاہور کو کرپٹ اور بلیک میلنگ عناصر سے محفوظ رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کریں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف میاں نوید تاج۔ پنجاب حکومت کا صوبائی دارالحکومت میں مذہبی سیاحت کی فروغ کے لیے اہم اقدام۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا اور ڈی جی ایل ڈی اے طارق فاروق کے ہمراہ داتا دربار کا دورہ کیا اور داتا دربار کے اطراف ٹریفک بہاؤ، تجاوزات کے خاتمے اور سڑکوں کی ماڈلنگ کا جائزہ لیا۔ اس سلسلہ میں ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے نے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو داتا دربار اور گردنواں میں ترقیاتی کاموں بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلال یاسین نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ داتا دربار کے اطراف سڑکوں کی بندش، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ داتا دربار کے نواحی حصوں کو بھی مزید روشن اور خوبصورت بنایا جائے۔ میٹرو اسٹیشن اور مہلکہ سڑکوں کی ری ماڈلنگ پلان بنایا جائے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس، محکمہ اوقاف اور ایل ڈی اے کو متفقہ تجاوز پر عمل درآمد کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ داخلی راستوں کو صوفی آرٹ سے مزین اور سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ مذہبی سیاحت اور ثقافت کے فروغ کے لیے داتا دربار سے ملکہ زمین واگزار کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لاہور کی پہچان داتا دربار کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ اس موقع پر چیف انجینئر ایل ڈی اے، سی او ایم سی ایل، ٹریفک پولیس، ضلع انتظامیہ، اوقاف اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن کی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن نے ایس ایس پی محمد بن اشرف کی زیر ہدایت کارروائیاں کرتے ہوئے گزشتہ ماہ میں 1175 ایف آئی آر کا اندراج کرایا، جبکہ مزید سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق سے۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن کی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ راولپنڈی ریجن نے ایس ایس پی محمد بن اشرف کی زیر ہدایت کارروائیاں کرتے ہوئے گزشتہ ماہ میں 1175 ایف آئی آرز کا اندراج کروایا۔ 33 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل اور 20 گاڑیاں بھی برآمد کیں۔ 71 پسٹل، 2 کلاشنکوف، 2 رائفل، ماہ 626 رون، 316 لیٹر شراب، 13 کلو گرام چرس، 11 کلو گرام افیون بھی برآمد کی گئی۔ 492 اشتہاری مجرم اور ان کے علاوہ ایک کیٹیگری میں شامل اشتہاری مجرم 32 اور 467 عدالتی مفرور بھی گرفتار کیے گئے۔ گاڑیوں میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے پر
784 ڈرائیوروں اور غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے 150 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات کا موقع پر اندراج کیا گیا۔ ای ایپ چیکنگ میں 29,52,526 پرسن اور 4,84,154 وہیکل چیک کیے گئے۔ دوران سفر 2664 پریشان حال مسافروں کی موقع پر مدد بھی کی گئی، جس میں 198 فرسٹ رسپونڈ اور طبی امداد بھی شامل ہیں۔ 81 گمشدہ بچوں کو بحفاظت ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ پیٹرولنگ پولیس موبائل ایجوکیشن یونٹ نے آگاہی مہم پروگرامز کا انعقاد کیا اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ ڈرائیونگ سکولز میں 1224 شہریوں کو ڈرائیونگ کورس بھی کروائے گئے، جبکہ 4591 شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ 3145 کم عمر جبکہ 41,557 بدون کاغذات و ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے موٹر سائیکل بھی بند کر دیے گئے۔ محکمانہ ترقی کے مراحل میں 27 ہیڈ کانسٹیبل، 31 ASI کے عہدے، جبکہ نئی بھرتی میں 49 کانسٹیبل، 30 لیڈی کانسٹیبل اور 11 ڈرائیور کانسٹیبل بھی بھرتی کیے گئے۔ پوسٹوں پر مصالحتی کمیٹیوں کی میٹنگز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس سارے مراحل کو عوامی حلقوں میں خوب سراہا بھی گیا۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ بہاڑی سے ہمارے بیورو چیف مہر عابد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم عوام کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی کے تحت محکمہ صحت کی ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے اجلاس میں محکمہ صحت کے ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ عوام کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عزم ہے۔ محکمہ بلڈنگ وہی مراکز صحت کی ریویمپنگ، ہسپتالوں کی OPD، سرجیکل وارڈ، ڈائلیسس یونٹ، واٹر سپلائی سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے اور ترقیاتی کاموں میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے کسی قسم کی سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مظفر خان، CEO ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید اور ایکسین ہائی وے دیگر افسران موجود تھے۔ وفاقی دارالحکومت میں مٹھائی بنانے والے پروڈکشن یونٹ پر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں مٹھائی بنانے والے پروڈکشن یونٹ پر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ۔ 26 نمبر کے مقام پر مضر صحت مٹھائی بنانے والا پروڈکشن یونٹ سیل۔ پروڈکشن یونٹ میں برفی بنانے کے عمل میں مضر صحت اجزاء کا استعمال پایا گیا۔ دوران کارروائی پروڈکشن یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔ پروڈکشن یونٹ کی جانب سے شہر بھر کی مختلف سویٹ شاپس پر مٹھائی سپلائی کی جاتی تھی، جس کے بعد شہر بھر کی سویٹ شاپس پر انسپیکشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کا۔ دیگر ان کا کہنا تھا شہری ناقص صفائی کے عمل پر فل فور فوڈ اتھارٹی کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ ایسے عمل پر فوری طور پر رپورٹ کریں۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، اسلام آباد۔ وکالہ سے جنید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کا DPO راشد داد کے ہمراہ جامعہ مسجد ریاض مانیہ گلشن اقبال ٹاؤن میں کلی کچہری کا انعقاد۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حافظ محمد عمر طیب، اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز، چیف آفیسر ضلع کونسل رانا نوید، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر نسیم، پولیس حکام سمیت دیگر افسران اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ دونوں افسران نے نماز جمعہ کے بعد عوام الناس کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو احکامات جاری کیے۔ مساجد میں عوامی مسائل کے سنوائی اسلامی تعلیمات کی روایات میں شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید جامعہ مسجد میں عوام کے درمیان ان کے مسائل کے حل کے لیے خدمات پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عوام کی فوری دادرسی کے لیے DC آفس کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جرائم کے خاتمہ کے لیے محکمہ پولیس بہترین انداز میں فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ DPO راشد داد گزشتہ 6 ماہ میں جرائم کی شرح میں 50% کمی واقع ہوئی ہے۔ DPO جرائم کے خاتمہ اور عوامی جان مال کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ DPO پرامن معاشرے کے قیام کے لیے عوام الناس، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں۔ DPO راشد داد کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس کو فوری طور پر دی جائے۔
गुज़िश्ता रोज़ तहसील प्रेस क्लब डडियाल ने बॉयज़ हाई स्कूल डडियाल के अकब के नगफ्ताबाद रोड की खस्ताहाली और गंदगी भरी हालत पर रिपोर्टिंग की थी, जिस पर चेयरमैन बल्दिया डडियाल अपनी टीम चीफ ऑफिसर अफराज हमजा, SDO इंस्पेक्टर तजावजात के हमरा मौके पर पहुंच आए। सेक्टर मकीनों को चेयरमैन बल्दिया ने पाबंद कर दिया कि वो अपने पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें। उन्होंने रोड का मौके मुलाहजा किया, जिसकी अबतर हालत देख चेयरमैन बल्दिया का कि इस रोड पर जिन घरों ने अपना गंदा पानी फेंका हुआ है, इनको नोटिस भेजकर पाबंद किया जाए और रोड के असर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके इसका तखमीना लगाया जाए ताकि इस रोड के मलका शहरियों का मुतालबा पूरा हो सके। इस मौके पर काउंसलर चौधरी आरिफ को भी कहा है कि वो इस रोड के हवाले से रिपोर्ट करें ताकि इस पर काम शुरू करवाने की मनसूबाबंदी की जा सके। इस मौके पर सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया के विजिट करने पर वार्ड 8 और सेक्टर 7 के मकीनों ने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि चेयरमैन बल्दिया ने हमारे दरीना मुतालबे पर मौके पर तशरीफ लाए और अपनी आंखों से देख लिया कि इसकी खस्ता हाली कितनी है और लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं। आए रोज नमाजियों, स्कूल के तलबा और राह गुजर अफराद को गुजरने में भी शदीद परेशानी का सामना था। उम्मीद है कि चेयरमैन बल्दिया जल्द इसकी मरम्मती के लिए कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं डूंगा बुंगा से हमारे 19 के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगा बुंगा में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मार के 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में नकदी और जुए का सामान भी बरामद हुआ। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डूंगा बुंगा पुलिस ने अलिया सुबह एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारा। छापे के दौरान 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पंजाब प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1978 के तहत की गई है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से सरदार मजहर हुसैन खान तरीन के फरजांद गरीब अवाम के दिलों की धड़कन, उभरती हुई नौजवान की आदत, सियासी और समाजी शख्सियत सरदार आसिफ खान तरीन के 3 भाई शादी के हसीन बंधन में बन गए। सरदार आमिर खान तरीन, सरदार यासिर खान तरीन, सरदार नादिर रजा खान शादी की तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल सरदार मजहर हुसैन खान तरीन के बेटे शादी के हसीन बंधन में बन गए। शादी की तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। दावत वलीमा बहावलपुर ताज महल रॉयल मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ और इसके बाद सरदार खान आसिफ खान तरीन के आबाई गांव मोजा माही टिब्बा में भी दावत वलीमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक MNA साहबजादा मियां नजीबुद्दीन अवैसी साहिब, साहबजादा मियां शुएब अवैसी साहिब, मखतूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी साहिब, सरदार मलिक नईम खालिद वारन साहिब, सैयद मुर्तजा शाह, सरदार गुलाम हैदर खान तरीन, सरदार मुख्तियार हुसैन खान तरीन, सरदार अजहर खान तरीन, सरदार अख्तर अब्बास खान तरीन, सरदार एजाज खान तरीन, सरदार फखर खान तरीन, सरदार इरफान खान तरीन, सरदार वसीम खान तरीन, सरदार कामरान खान तरीन, सरदार तोकीर खान उर्फ तकी खान तरीन, DSP ट्रैफिक मलिक रियाज साहिब बहावलपुर, चेयरमैन मलिक मुश्ताक डाउन, चेयरमैन हाजी जमीर अहमद किची, चेयरमैन सरदार फैज राइस मुजाहिद हुसैन फरहाद, चेयरमैन हाजी रहीम बख्श खरवाला, मलिक हबीब अहमद लॉन्ग, चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब फारूकाबाद जाम अहमद यार, मलिक तनवीर कलियार, मलिक अतीक लॉन्ग, मलिक दिलशाद अली जोया, अब्दुल मालिक खान एडवोकेट साहिब, असद भाई, इमरान भाई ग्लोबल वाले, ताहिर खान बलोच आर्मी वाले, खिजर अब्बास, मुजाहिद खान कबूल, मलिक शर्जील खरोला, मास्टर जावर हुसैन खरोला, शहजेब सतार लोथरा, मलिक वाजिद अमीन, मोहसिन सुबहान, डॉक्टर जमील मजर चन्नड़, वसीम जाफरी अरबी, रमज़ान मोहम्मद अदनान, रमज़ान चक लोहार और अहल इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। अब रुक करते हैं शहर काय थाना औरंगी टाउन का, जहां जिला वेस्ट में साल 9 का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। गुटका मावा के जराइम में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके गुटका मावा की बड़ी मिकदार बरामद की गई। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना औरंगी टाउन में, जहां SHO थाना औरंगी टाउन शेर मोहम्मद सांगी से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और उसके नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है थाना औरंगी टोल पे, जहां पर साल 9 की पहली FIR दर्ज कर ली गई है। मुलजमान को भी अरेस्ट किया गया। अच्छा सर, साल 9 की पहली कार्रवाई करते हुए गुटका मावे में मुलव्विस मुलजमान को आपने अरेस्ट किया, ये कार्रवाई किस तरीके से अमल में लाई गई? ये भाई हाजी साहब के अहकामात, BI साहब के अहकामात, SSP साहब के अहकामात की रोशनी में हम वक्तन बवक्तन ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का जो क्राइम है वो ना हो। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये बंद लोग जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाल इकट्ठा करके फिर ये सामान बना के आगे भेज देते हैं। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात गुटका मावा के जराइम में मुलव्विस अफराद के हवाले से थाना औरंगी टाउन की हदूद में इतनी बड़ी मिकदार में गुटके मावे का माल ले आना एक बड़ी तशवीश की बात है। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से थाना औरंगी टाउन की हदूद में ये गुटका मावे में जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल लेकर आ रहे थे?
भाई ये थोड़ा थोड़ा सामान करके जब ड्यूटी की नफरी चेंज होती है उस टाइम थोड़ा इनको गैप मिल जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान लेके आके ये इकट्ठे कर लेते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये जब इनके माल माल थोड़ा काफ़ी मिकदार में इंफॉर्मेशन मिली गई इनके पास माल ये थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे हो रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत उम्मीद थी कि और माल ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अभी हमें फिर भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की है हमने। और ये जिनके टब इनके मीटर इनका सामान वेट मशीन सब पकड़ा है। अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो या मोटरसाइकिल लिफ्टर या गुटखा माओ के जराये में मुलविस अफराद के खिलाफ तो आपके सुपरविजन में बेहतरीन इकदाम जारी और मुलजमान की गिरफ्तारियां भी नजर आ रही हैं, मगर सर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप थाना औरंगी टोन की हदूद में क्या इकदाम कर रहे हैं? भाई हमने बीट वाइज पूरी नफरी लगाई है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। जो इंटेलिजेंस बेस है उसको हमने पूरा दिन इलाके में रखा हुआ है कि कोई भी इस तरह का कोई जो क्राइम है वो नहीं हो। अभी आते हुए तकरीबन 1.5 महीने में मैंने कोई 8-9 बड़े बड़े केस इसके किए हैं। बाकी वो तो और डकैतों के बाइक रिकवर करने के और चीज़ों के 1-2 कार हमने रिकवर की चोरी की, वो तो केस अलग है। लेकिन ये जो खास करके ये गुटके मारे का जो आई साहब की सख्ती से काम आते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये कैंसर है, बड़ा नासूर है। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेश अफराद को क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम है कि जो ऊपर अफसर भला की ये जो हमें अहकामात हैं कि इस सिलसिले में जो हमारी ये ड्यूटी है कि कोई भी इस तरह का वाकया यहाँ के कोई इस तरह का कोई स्ट्रीट क्रिमिनल का काम यहाँ को आएगा तो बचेगा यहाँ से, न ही जो है वो सोशल क्राइम ये करेगा, इस तरह की जो एक्टिविटी करेगा गुटके माए चरस बंचा जिस किस्म की भी होगी उसको बंद करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना औरंगी टाउन जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान खौफनाक हादसा, एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। फिरोजा के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक मोटरसाइकिल और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजा में एक कमसिन बच्ची मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 30 साल खातून शदीद जख्मी हुई। हादसे में एक नौजवान की टांग भी टूट गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये हादसा मोटरसाइकिल सवार की गफलत के बायस पेश आया। इन शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रक के सामने अचानक मोटरसाइकिल मोड़ दी, जिससे ये अलमनाक वाकया पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की कमांड में सिटी यजमान पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। SHO थाना सिटी यजमान हजूर बख्श ने मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी। शहर मुज़फ़्फ़रात के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलज़मान शहजाद और खालिद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जा से 5 किलो 653 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मंशियात फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल मजीद मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मारी है। DPO असद सरफराज खान ने थाना सिटी यजमान पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। DPO सरफराज। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना औरंगी टाउन का, जहां जिला वेस्ट में सालों का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। गुटखा मावा के जाम में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार करके गुटखा मावा की बड़ी मिकदार बरामद की गई। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना औरंगी टाउन में, जहां SHO थाना औरंगी टाउन शेर मोहम्मद सांगी से मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है थाना औरंगी टोल पे, जहां पर 9:30 की पहली FIR दर्ज कर ली गई है। मुलजमान को भी अरेस्ट किया गया। अच्छा सर, 9:30 की पहली कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा में मुलविस मुलजमान को आपने अरेस्ट किया, ये कार्रवाई किस तरीके से अमल में लाई गई? ये भाई हाजी साहब के अहकामात, BI साहब के अहकामात, SSP साहब के अहकामात की रोशनी में हम वक्तन बवक्तन ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का जो क्राइम है वो ना हो। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये बंद लोग जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाल इकट्ठा करके फिर ये सामान बना के आगे भेज देते हैं। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात गुटखा मावा के जराये में मुलविस अफराद के हवाले से थाना औरंगी टाउन की हदूद में इतनी बड़ी मुकदार में गुटखा मावा का माल ले आना एक बड़ी तशवीश की बात है। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से थाना औरंगी टाउन की हदूद में ये गुटखा मावा में जो इस्तेमाल होने वाला मटीरियल लेकर आ रहे थे? भाई ये थोड़ा थोड़ा सामान करके जब ड्यूटी की नफरी चेंज होती है उस टाइम थोड़ा इनको गैप मिल जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान लेके आके ये इकट्ठे कर लेते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये जब इनके माल थोड़ा काफ़ी मिकदार में इंफॉर्मेशन मिली गई इनके पास माल ये थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे हो रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत उम्मीद थी कि और माल ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अभी हमें फिर भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की है हमने।
और ये जिनके टब, इनके मीटर, इनका सामान, वेट मशीन सब पकड़ा है। अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो या मोटरसाइकिल लिफ्टर या गुटखा माओ के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ तो आपके सुपरविजन में बेहतरीन इकदाम जारी और मुलजमान की गिरफ्तारियां भी नजर आ रही हैं, मगर सर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप थाना औरंगी टोन की हदूद में क्या इकदाम कर रहे हैं? भाई हमने बीट वाइज पूरी नफरी लगाई है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। जो इंटेलिजेंस बेस है उसको हमने पूरा दिन इलाके में रखा हुआ है कि कोई भी इस तरह का कोई जो क्राइम है वो नहीं हो। अभी आते हुए तकरीबन 1.5 महीने में मैंने कोई 8-9 बड़े बड़े केस इसके किए हैं। बाकी वो तो और डकैतों के बाइक रिकवर करने के और चीज़ों के 1-2 कार हमने रिकवर की, चोरी की, वो तो केस अलग है। लेकिन ये जो खास करके ये गुटके मारे का जो आई साहब की सख्ती से काम आते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये कैंसर है, बड़ा नासूर है। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम है कि जो ऊपर अफसर बला की ये जो हमें अहकामात हैं कि इस सिलसिले में जो हमारी ये ड्यूटी है कि कोई भी इस तरह का वाकया यहाँ के कोई इस तरह का कोई स्ट्रीट क्रिमिनल का काम यहाँ को आएगा तो बचेगा यहाँ से, नहीं जो है वो सोशल क्राइम ये करेगा, इस तरह की जो एक्टिविटी करेगा, गुटके माए चरस बंचा जिस किस्म की भी होगी उसको बंद करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना औरंगी टाउन जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी कार्रवाई, स्वीट प्रोडक्शन यूनिट सील। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मिठाई बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट पर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का छापा। 26 नंबर के मुकाम पर मुअस्सस सेहत मिठाई बनाने वाला प्रोडक्शन यूनिट सील। प्रोडक्शन यूनिट में बर्फी बनाने के अमल में मुअस्सस सेहत अज्जा का इस्तेमाल पाया गया। फूड अथॉरिटी दौरान कार्रवाई प्रोडक्शन यूनिट में सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए। प्रोडक्शन यूनिट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स पर मिठाई सप्लाई की जाती थी। फूड अथॉरिटी शहर भर की मिठाई शॉप्स पर भी इंस्पेक्शन का अमल जारी। ताहिरा सदीक शहरी नाक़िस सफाई के अमल में फिलफौर फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। अब रुक करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, जहां डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज साहब की खुसूसी हिदायत पर मीरपुर की जिला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। मीरपुर लखा सिंह मोड़ आस्थाना के नाम पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा। अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज ने नोटिस लेकर आस्थाना मस्मार करने और जाली पीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चौधरी यासिर रियाज की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर राजा जाहिद, तहसीलदार मीरपुर चौधरी इमरान यूसुफ, SHO थाना अफजल चौधरी अरशद हमरा नफरी आस्थाना लखा सिंह मोड़ से जाली पीर इमरान खान वल्द असगर खान को मौके से गिरफ्तार करके थाना अफजलपुर में बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर राजा जाहिद ने कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची। तहसील रिपोर्टर तांदेवाला की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रेवेन्यू पंजाब के नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अनवर गुजर 35 साल नौकरी करने के बाद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए हैं, जिनके एहसास में हल्का मामू कांचन के पटवारियों और मुंशियों ने इनके महकमा माल में शानदार खिदमात के इतराफ पर एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें इन्हें भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि चौधरी मोहम्मद अनवर गुजर 1993 में पटवारी भर्ती हुए जो 2020 में अपनी कारकर्दगी की बिना पर कानून को और 2024 में नायब तहसीलदार बन गए। याद रहे कि चौधरी अनवर गुजर के वालिद भी पटवारी थे और भाई चौधरी मोहम्मद अफजल भी नायब तहसीलदार के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे, जिन्होंने अपने ओहदे से इंसाफ करते हुए महकमा को अपनी बेहतरीन खिदमात पेश की। इस मौके पर मामू कांचन से हमारे रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रेवेन्यू पंजाब के नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अनवर गुजर 35 साल नौकरी करने के बाद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए, जिनके एहसास में हल्का मामू कांचन के पटवारियों और मुंशियों ने इनके महकमा माल में शानदार खिदमात के इतराफ पर एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें इन्हें भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि चौधरी मोहम्मद अनवर गुजर 1993 में पटवारी भर्ती हुए जो 2020 में अपनी कारकर्दगी की बिना पर कानून को और 2024 में नायब तहसीलदार बन गए। याद रहे कि चौधरी अनवर गुजर के वालिद भी पटवारी थे और भाई चौधरी मोहम्मद अफजल भी नायब तहसीलदार के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे, जिन्होंने अपने ओहदे से इंसाफ करते हुए महकमा को अपनी बेहतरीन खिदमात पेश की। इस मौके पर चौधरी बिन्यामीन जट, शेख मोहम्मद जुबैर प्रेस वाले, अजहर बलोच पटवारी, खिजर हयात पटवारी, अलियास आमिर पटवारी, खुरम इसाक पटवारी, हाफिज सदाकत अली पटवारी, सदाम हुसैन पटवारी, उज़ैर अहमद पटवारी, कुतुब निसार पटवारी, मलिक आजम पटवारी, आरिफ पटवारी और दीगर 2 सहबाब जिनके ज़ेर निगरानी ये तकरीबात मुनक्किद की गई।
भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारी डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, नूरुल आलमीन मिंगल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डायरेक्टर सिविल डिफेंस ज़मीर हुसैन की खुसूसी हिदायत और ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस के अहकामात की रोशनी में महकमा सिविल डिफेंस ने साल 2024 में गैर कानूनी आई एजेंसियों और गैर कानूनी रियाजिंग करने वालों के खिलाफ जिला भावनगर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 156 FIR का इंदराज करवाया। कमर्शियल इंडस्ट्री अदाराजात में 2348 की इंस्पेक्शन की गई। कमर्शियल इंडस्ट्री अदाराजात में फायर सेफ्टी के इंतजामात मुकम्मल ना होने की बिना पर 132 अदाराजात के चालान बनाए गए और जुर्माने की कीमत में तकरीबन 17,55,000 रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। 1885 को सरेबर किया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद सिंधु ने गैर कानूनी कारोबार करने और फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल ना करने वाले मालिकान को तनबीह की कि वो फायर सेफ्टी जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और गैर कानूनी कारोबार से बाज रहें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया है कि नई आगाही के सिलसिले में सेमिनार्स और किताब का इनेकाद किया गया और वामुलास की आगाही के लिए वाक़ की गई अलावाज़ीन 8 मॉक एक्सरसाइज में शमूलियत की गई। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारी डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर दूसरे रोज भी डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर निगरानी जिला के तमाम तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अवाम के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के फौरी हल के लिए मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के मकसद ज़मीनों के इंतकाल, फ़र्द के इजरा, रजिस्ट्री, रिकॉर्ड दुरुस्तगी और दीगर मसाइल को फौरी और शफाफ तरीके से हल करना है। अवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इससे इनके मसाइल मुकामी सतह पर और बगैर किसी रुकावट के हल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी है कि वो अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शहरी को इंसाफ और सहूलत फराहम की जाए। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर का सालाना इंतखाबी इजलास वाइटल प्लाजा में वाक़िया मुकामी होटल में हुआ। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हाफिज साकिब महमूद साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने हासिल की। इजलास ज़ेर सदारत साबिका सदर डॉक्टर आरिफ रजा मलिक हुआ। इजलास में बाहमी इत्तफाक राय से साल 2025 के लिए सरपरस्त आला नवाब जफर अली नागरा, सरपरस्त हाजी असगर अली भट्टी, चेयरमैन हाफिज साकिब महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद हुसैन अंजुम, वाइस चेयरमैन चौधरी तनवीर अहमद सदर, डॉक्टर आरिफ रजा मलिक सीनियर, नायब सदर मलिक अब्दुल लतीफ़ चौहान, नायब सदर मोहम्मद जमील अख्तर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद यूसुफ़ी, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख अरसलान यूडी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद इरफान खोकर मुंतखब हुए और एग्जेक्टिव मेंबरान एम आसिफ कमर चौधरी, जायद महमूद और मेंबरान में सैयद शाहिद हुसैन शाह, असलम शाहीन, गुलाम कादिर मुनव्वर, महमूद कुरैशी शामिल हैं। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख फैसलाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक साल 9 के आगाज में ही शहर भर के थानों में दर्जनों वारदातें, डाकू वारदातें करके रफू चक्कर हो गए। डिलीवरी बॉय से लेकर गिफ्ट में मिलने मोटरसाइकिल तक डाकुओं के हाथ जो लगा लूट लिया। थाना डी टाइप कॉलोनी की हदूद में डकैती की वारदात, डाकू गिफ्ट में मिला मोटरसाइकिल होंडा 125 अप्लाई फॉर छीन कर फरार हो गए। शहरी फरकान दरख्वास्त गुजार ने बताया कि घर से सौदा जल्फ लेने के लिए निकले थे। फूड पॉइंट के साथ पान शॉप पर खड़े थे। इसी दौरान 3 कस्म मुसल्लह मुलजमान आए और होंडा अप्लाई फॉर छीन कर फरार हो गए। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजमान पैदल आए और शहरी से असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर बासानी फरार हो गए। शहरी का कहना है कि इलाका में डकैतियां आम हैं, डाकुआ आजाद घूम रहे हैं, पुलिस अपनी धुन में मस्त है, कोई पुरसाने हाल नहीं। थाना डी टाइप पुलिस को शहरी ने डकैती की वारदात की इत्तला दी है। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। सियालकोट से कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के 27 थानों में से थाना हाजीपुरा, थाना सिटी, डस्का, थाना कोतवाली की SHO ने कारकर्दगी के लिहाज से पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करके महकमे का सर फखर से बुलंद कर दिया है। टोटल 1228 नंबर रखे गए थे। SHO थाना हाजीपुरा ने पूरे के पूरे नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि SHO सिटी डस्का इमरान सुल्तान ने 1228 नंबरों में से 993 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इसी तरह SHO थाना कोतवाली इंस्पेक्टर काशिफ ने 1228 नंबरों में से 968 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सियालकोट के सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के अलावा सिविल सोसाइटी ने तीनों SHOs को पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद और शाबाश दी। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात का कहना था कि जिस तरह इन पुलिस के बहादुर सपूतों ने दिन रात मेहनत करके अपने इलाके में जराइम पर काबू पाया है, इसी तरह तमाम SHOs मेहनत करें तो सियालकोट अमन का गहवारा बन सकता है। हम इन 3 बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जहां भी जाएंगे इसी तरह अपनी मेहनत को जारी सारी रखेंगे। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज भी गरीबों को इंसाफ मिल रहा है। इसी तरह के ईमानदार पुलिस मुलाजमीन की वजह से पुलिस के बड़े अफसरान भी फख्र महसूस करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।